Good evening, everyone. On the behalf of Indian Council on Social Science Research, I extend a warm and respectful welcome to all of you. Before we proceed for today's event, let us take a moment to honor and remember the innocent lives that we lost in the Pahalgam attack. I request everyone to kindly rise and observe 2 minutes of silence as a mark of respect for the departed souls. Thank you, everyone. May our thoughts and prayers bring strength to their families and remind us of the enduring need for peace and humanity. I now extend my welcome to the distinguished dignitaries on the dais. Today we have with us Shri Dharmendra Pradhan ji, Honorable Union Minister of Education. We have with us Shri Sunil Ambekar ji, Social Worker and Akhil Bhartiya Prachar Pramukh for Rashtiya Sangh. Swayamsevak Sangh. And we have with us esteemed author of the book, Professor Ashok Gajanan Modak. And we also have with us Dr. Vinay Sahasrabuddhe ji, Vice Chairman, Rambhau Mahalgi Prabodhini. Now, I may request our Member Secretary of ICSSR, Professor Dhananjay Singh, to felicitate Honorable Union Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan ji. I now again request Member Secretary ICSSR to also facilitate Shri Sunil Ambekar ji. May I now request Chairman ICSSR, Professor Deepak Kumar Srivastava, to felicitate Professor Ashok Gajanan Modak, the esteemed author of the book. May I now again request Chairman Sir to also facilitate Dr. Vinay Sahasrabuddhe ji. Thank you, honorable guests, for accepting our gratitude. Now may I invite Professor Dhananjay Singh, Member Secretary ICSSR, to deliver his welcome address. The most Honorable Shri Dharmendra Pradhan ji, Honorable Union Minister of Education, Government of India, Adaraniya Mananiya Shri Sunil Ambekar ji, Akhil Bhartiya Prachar Pramukh, Rashtiya Swayamsevak Sangh, Shraddheya Professor Ashok Gajanan Modak ji, respected Vinay Sahasrabuddhe ji, Manya K.N. Raghunandan ji, Manya Mahesh Sharma ji, Manya Rajkumar Bhartiya ji, all the honorable dignitaries and respected leaders of Indian thought gathered in this hall today afternoon.
We are really grateful to each one of you for making this possible. It is truly a watershed moment at ICSSR for the social science community that we are releasing today a truly paradigm-changing work in social science. Ably titled as Integral Humanism, a Distinct Paradigm of Development, authored by Ashok, Gajanan, Modak ji. हर जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल जो कृति होती है उसके अंदर एक ज्ञान की परिकाष्ठा होती है, स्फूर्ति होती है, लेकिन हर पुस्तक की अपनी कहानी होती है। और मेरा ये सौभाग्य है कि ICSSR में माननीय अशोक गजानन मोदक जी से जब प्रस्ताव आया इस किताब को लेकर, और मैंने देखा कि कैसे उन्होंने एक संघर्ष को ओवरकम करके, कैंसर जैसे जो संघर्ष है ओवरकम करके, और उन दिनों 2 साल लगातार जो है, ये जो किताब है साधना की पुस्तक है। और एक तरीके से जो है दिस इज़ अ epitome of example for any one of us interested in Indian thought knowledge traditions, that knowledge comes out of sadhana, कि एक उनकी ख्वाहिश कि ये किताब जो है पब्लिश हो और इस किताब को सोशल साइंटिस्ट पढ़ें। This book is ably titled A Distinct Paradigm of Development, based on the ideas and practices and precepts and philosophies and ideas for policy making by a true visionary of Bharat Mata, Deendayal Upadhyay ji. It's a distinct paradigm of development, not because it's an alternate paradigm of development. देखिए, ह्यूमनिज्म के 2 पैराडाइम हैं। मैं बस एक मिनट लूँगा इस विषय पर। ह्यूमनिज्म की 2 पैराडाइम है। एक पैराडाइम जो है वो रेनेसां ह्यूमनिज्म से यूरोप में शुरुआत होती है, जिसकी जहाँ पर कि ये एक पहली बार जो है ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि ह्यूमन इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे शेक्सपियर ऑफ कोर्स इन हैमलेट एंड मेनी ऑफ हिज प्लेस वुड से दैट व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफाइनाइट इन पॉसिबिलिटीज़। लेकिन वो जो पैराडाइम है वो एक रिलीजियस फ्रेमवर्क के अंदर है। मिल्टन का एक एपिक है, ये कहना ज़रूरी है जब हम दीनदयाल जी की बात करें। जॉन मिल्टन का एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें एक स्टेटमेंट आता है, बिकॉज वहाँ पे एक्साइटमेंट की बात है मेडिवल डार्क एजेस के बाद, कि ह्यूमन बीइंग भी सेंट्रल हो सकता है। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकंकरेबल विल एंड द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, a mind in itself can make a heaven of hell and hell of heaven. लेकिन वहाँ पे जो ह्यूमन स्पिरिट का जो सेलिब्रेशन है वो सैटर्न कर रहा है। So Renaissance humanism is the other of God. And then you have Descartes, of course, material world and the mental world. Marxist humanism जो है वो conflict ridden है, conflict ridden humanism है Marxist humanism जो है। Capitalist humanism जो है, it is based on exploitation of the poor, of the worker. Colonialism की शुरुआत होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो रिलीजन का अदर है, इसीलिए भरे सेकुलरिज्म की जो है इवोल्यूशन होती है, बट हमेशा द नेचर एंड नॉन ह्यूमन इज देयर एज द फाउल ऑफ एयर एंड द फिश ऑफ वाटर टू बी कंज्यूम। भारतीय जो ह्यूमनिज्म है, और ये भी कहना ज़रूरी है, दीनदयाल जी खुद कहते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में, और हमारे जो लेखक है आदरणीय मोदक जी कहते हैं कि अगर हम एकात्म मानववाद की बात करें तो इसकी हम हिस्ट्री अपने थॉट पे कहाँ लेके जाएंगे। जो प्यूरिस्ट है इंडियन नॉलेज सिस्टम में कहेंगे नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। दीनदयाल जी का कहना ये है कि 1000 साल का जो इन्वेजन है, जो कोलोनिज्म है, ऐसा तो नहीं मान सकते कि इन 1000 सालों में हमारे चिंतकों ने, हमारे जो प्रजा है, सोसाइटी ने इंगेज नहीं किया होगा अपने आइडियाज़ को। सो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में टोटोलॉजिकली अगर हम रिपीट करें चीज़ों को कि हाँ, वेद में एक तरह की एक जो ज्ञान है उसको हम किस तरह से क्रिएटिवली डिप्लॉय के कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो जो है माननीय उपाध्याय जी की जो कृति है उसमें हो, और माननीय मोदक जी ने जो है जिस तरह से किताब को आप देखेंगे कि हर चैप्टर में, और सस्टेनेबिलिटी पे आके वो बात करते हैं अपनी किताब में कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है उसका सस्टेनेबिलिटी के डिस्कोर्स है। मैं बस एक हाफ ए मिनट इस पर ये लूँगा कि सस्टेनेबिलिटी का डिस्कोर्स में बहुत प्रचलित है आजकल।
1917-80s में बात होती है यूरोप में, अमेरिका में, क्योंकि एक तरीके का डेवलपमेंट है जो कि लीनियर है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है, उसी पाथ पे सब देशों को चलना है। फिर बाद में आपको रियलाइजेशन होता है कि अरे इकोलॉजी का प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं, तो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें। दीनदयाल जी कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी का, दो तरीके से आप जो है एक जो एंटी कॉलोनियल सोसाइटी, डिकोलोनाइजेशन दो तरीके से हो सकती है। एक तो ये है कि आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस अपने हो, या फिर वो जो कि वेस्ट जो डिफीटेड है अगर वो सस्टेनेबिलिटी को जो है रिकग्नाइज करता है, तो भारतीय परंपरा जो है जो हमेशा से सस्टेनेबल रही, उसको पहचानने की आवश्यकता है। इसीलिए ये जो पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट है, ये पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है, जो कि भारत सरकार का माननीय शिक्षा मंत्री का एजुकेशन को लेकर इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ कोर्स वेयर मार्जिनलाइज सेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो पैराडाइम है वो एक्सक्लूजन को लेके जाता है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पहले जो जहाँ से मैं भी आता हूँ वहाँ भी डिपार्टमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन को पढ़ाई है, वो उस पैराडाइम का है। और ये जो पैराडाइम है ये इंक्लूजन का है। इसलिए ये किताब बहुत ज़रूरी है सोशल साइंस की दृष्टि ना ही बस इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की दृष्टि से जो है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उससे जुड़ने का मौका मिला। ICSSR में एक साल में लगभग हम 1000 के करीब जो है रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं जो बुक में तब्दील जो है ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं और फिर पॉलिसी मेकिंग के लिए कामयाब हो सकती है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि NBT के साथ मिलकर, और हमारा उद्देश्य ये है कि जो 1000 किताबें जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ जो डेवलपमेंट जिसमें ICSSR करा रहा है, एक आम छात्र जो है, चाहे वो गोरखपुर में हो, गोपालगंज में हो, महाराष्ट्र के छोटे से कॉलेज में, वो भी उस किताब को पढ़ सके। इस किताब में यही है, एक ही रिग्रेट की 1200 की किताब है, इसलिए कि इसमें 75,000 ही खर्च हुए तो, और मैं आया ही था। पर हमारा उद्देश्य है कि इसको पेपर बैक में लेके आएंगे और सारी हमारी किताबें जो हैं वो NBT के साथ, या हम 250 से 300 रुपये में, ताकि हर विद्यार्थी जो सोशल साइंस रिसर्च को पढ़ सके। इसी के साथ जो है मैं आप सबका जो है स्वागत करता हूँ यहाँ, और जो फिर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ आदरणीय मोदक जी का इस किताब को लिखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for setting the tone of the evening and showcasing the importance of Ekatma Manavvad. The thought, हर पुस्तक की एक अपनी कहानी होती है, reflects the significance of today's event. May I now request our chairman ICSSR, Professor Deepak Kumar Srivastava, to deliver his special remarks. आप सभी लोगों को वंदन और नमस्ते। भारत के माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मंच पर आसीन अन्य महान भाव प्रोफेसर अशोक गजानन मोडक जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री सुनील अंबेकर जी, और मंच पर उपस्थित डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी, वाइस चेयरमैन राम भाऊ मालगी प्रबोधनी, इस सभागार में उपस्थित मूर्धन्य विद्वान विद्वज्जन, जिनका कार्य अपने आप में वंदनीय है और जो इस देश को आगे ड्राइव कर रहे हैं, उन सभी लोगों का मैं वंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आज का जो ये कार्यक्रम है ये एक नया मील का पत्थर साबित होगा। जैसा कि प्रोफेसर धनंजय सिंह ने बताया, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आज प्रोफेसर अशोक गजानन मोडक जी की पुस्तक एकात्म मानववाद के विमोचन कार्यक्रम में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और ICSSR अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। आज के इस अवसर पर माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय की उपस्थिति हमारे लिए विशेष सम्मान का विषय है। आपकी उपस्थिति इस पुस्तक की महत्ता तथा इसके केंद्रीय विचार एकात्म मानववाद की हमारे राष्ट्र के भविष्य के संदर्भ में प्रासंगिकता को रेखांकित करती है। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा निवास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही है और उस पार्क में मैं नित्य दर्शन करता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और उनसे प्रेरणा लेने का प्रयास करता हूँ। एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा प्रतिपादित एक दर्शन है जो केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं अपितु व्यक्ति के समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक को केंद्र में रखने वाला एक जीवन दर्शन है।
अभी धनंजय जी ने बताया कि ये पुस्तक जो लिखी गई ये एक तपस्या है, और ये एकात्म मानववाद भी एक तपस्या है। इनकी एकात्म लाने के लिए हमको तपस्या करनी पड़ेगी, तभी ये संभव हो पाएगा। प्रोफेसर अशोक गजानन मोडक जी की ये पुस्तक इस दर्शन का गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है तथा इसके शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था पर प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण करती है, और ये बताती है कि एकात्म मानववाद किस प्रकार एक न्याय संगत, समतामूलक और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो सकता है। ये पुस्तक विभिन्न निबंधों का संग्रह है जो एकात्म मानववाद के विविध पक्षों का सूक्ष्मता से अन्वेषण करते हैं। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों की तुलना महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे अन्य महान विचारकों से की गई है। साथ ही स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक के विचारों का दीनदयाल उपाध्याय पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण भी किया गया है। आज के इस तीव्र, परिवर्तनशील और जटिल विश्व में एकात्म मानववाद आशा का संदेश प्रदान करता है। यह हमें स्मरण कराता है कि सच्ची प्रगति केवल तकनीकी विकास में ही नहीं बल्कि मानव आत्मा के पोषण, सहानुभूति के विकास और सामाजिक समरसता की स्थापना में निहित है। प्रोफेसर मोडक ने इस दर्शन का गंभीर अध्ययन कर उसे आज के पाठकों के लिए सहज और सुलभ भाषा में प्रस्तुत किया है, जो उनके परिश्रम और विद्वत्ता का प्रशंसनीय उदाहरण है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने शिक्षा सुधार के प्रति हम आपकी प्रतिबद्धता और ज्ञान आधारित समाज निर्माण की आपकी दूरदृष्टि एकात्म मानववाद के सिद्धांतों से पूर्णतः मेल खाती है। हमें विश्वास है कि प्रोफेसर मोडक की यह पुस्तक नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। ICSSR कोर से मैं प्रोफेसर अशोक गजानन मोडक को शिक्षा एवं दर्शन के क्षेत्र में उनके इस मूल्यवान योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को प्रकाशित करने वाले प्रकाशक का भी आभार प्रकट करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से आग्रह करता हूं कि वे एकात्म मानववाद के सिद्धांतों को अपनाते हुए एक समृद्ध और सहानुभूतिपूर्ण समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। पुनः एक बार आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए हार्दिक धन्यवाद। अब मैं ससम्मान भारत के माननीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे सभी को संबोधित करें और इस पुस्तक का औपचारिक विमोचन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your invaluable insights. Privileged to witness the unveiling of this important work, one that aims to inspire thought and shape the future of India. I request our esteemed guests to formally release the book, Integral Humanism, A Distinct Paradigm of Development, which has been authored by Professor Ashok Gajanan Modak and published by ICSSR. Thank you, all the dignitaries, for adding significance to this event today. It is now my pleasure to invite Dr. Vinay Sahasrabuddhe, an eminent academician and Vice President of Rambau Mahalgi Prabodhini and former Chairman, Indian Council of Cultural Relations. He served as... Thank you so much, sir. मंच पर उपस्थित देश के आदरणीय शिक्षा मंत्री, हमारे मित्र श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, साथ ही इस कार्यक्रम के केंद्र में जो है वो वरिष्ठ शिक्षाविद, प्राध्यापक और इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर अशोक मोडक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख श्री सुनील अंबेकर जी, साथ ही साथ ICSSR के सभी पदाधिकारीगण, श्रीवास्तव जी, धनंजय सिंह जी, सामने बैठे हुए सभी महानुभाव,
भाइयों और बहनों, यह कार्यक्रम इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च और रामभाऊ महागी प्रबोधिनी के संयुक्त तत्वावधान में है और सोशल साइंस रिसर्च के क्षेत्र में प्रबोधिनी भी अपनी पद्धति से कुछ न कुछ प्रयास करती रही है। उल्लेखनीय है कि भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रबोधिनी के इंडियन जर्नल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को भी कुछ सहयोग मिलता रहा है और यद्यपि हम अपने देश का वर्णन सार्थक रूप में जनतंत्र की जननी करते हैं, मगर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को समर्पित एक भी शोध केंद्रित जर्नल देश में नहीं था और इसलिए ICSSR was kind enough to support our initiative, and for last more than 3 years we are coming out with this biennial journal on democratic governance. I am very grateful to ICSSR for having supported us not only in this initiative but also accepting our request to have this kind of a function, because Dr. Ashok Modak also has been a part of Rambhau Mahagi Prabodhini. He was our trustee for a long time, and basically for many of you, Dr. Ashok Modak is not a new name. हम में से अधिकांश लोग मोडक जी को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। बावजूद इसके कभी कभी जिस व्यक्ति को हम पहचानते हैं ऐसा हमें लगता है उसके बारे में बारीकियों में बहुत जानकारी हमारे पास रहती नहीं, इसलिए संक्षेप में मैं डॉक्टर मोडक जी के बारे में कुछ बातें कहूँगा। डॉक्टर अशोक मोडक ने अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्र में MA संपादन करने के बाद अर्थशास्त्र में PhD पूरी की। उनका कुछ अध्ययन यहाँ पर दिल्ली में हुआ, बाराखंबा रोड में जो ISIS हॉस्टल है वहाँ पर रहते हुए, और बाद में कुछ साल वो मॉस्को में, क्योंकि उनका विषय था सोवियत एड, इकोनॉमिक एड टू इंडिया, और इस विषय पर उन्होंने 70 के दशक के प्रारंभ में PhD संपादन की। उसके बाद बरसों तक वो मुंबई के रामनारायण रुइया कॉलेज में अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्र पढ़ाते रहे। बाद में मुंबई विश्वविद्यालय के राज्यशास्त्र विभाग में पढ़ाते रहे। उसी दरमियान मुंबई विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर सोवियत स्टडीज़, जो बाद में सेंटर फॉर यूरेशियन स्टडीज़ बन गया, उसमें भी उन्होंने लंबे समय तक अध्यापन का काम किया। बट आई मस्ट मेंशन ओवर हियर दैट ही इज़ ए prolific writer as well. Practically in every other Marathi journal, he has been contributing very regularly, and the passion with which he has been writing on number of subjects, especially contemporary issues and also deeply philosophical subjects, it's something very remarkable. एक बात और कहनी चाहिए कि ये जो किताब आज उनकी प्रकाशित हो रही है, मैं उनको पूछ रहा था कि ये किताब प्रकाशित हो गई तो आपके कुल मिलाकर ग्रंथ निर्मितियों की संख्या कितनी हो गई, तो उन्होंने कहा कि लगभग 45 किताबें अब तक उनके नाम पर है, और जो तीनों भाषाओं में है, मराठी में भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। मगर डॉक्टर मोडक जी का परिचय केवल इतना कहने से समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो उच्च कोटि के कार्य करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ 60 के दशक से ही उनका संबंध रहा, और विद्यार्थी परिषद के सबसे पहले तो मुंबई इकाई के वो अध्यक्ष रहे बरसों तक। उसके बाद परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने दायित्व निभाया। मगर ऊंचे ऊंचे पदों पर जाकर काम करते हुए भी वे मूलतः कार्यकर्ता पर स्नेह करने वाले एक संगठक के रूप में हम सबको जाने, हमारे सबके अंदर उनकी छवि है, वो एक कार्यकर्ता प्रेमी संगठक की है। कोई कार्यकर्ता बीमार हो, कोई कार्यकर्ता किसी परेशानी का अनुभव कर रहा हो, डॉक्टर मोडक जी उसके पास दौड़कर गए या उनका फ़ोन गया, मैं मानता हूँ कि ये लगभग हर किसी का अनुभव रहा है। साथ ही साथ सामाजिक समता और समरसता के वो बहुत प्रखर प्रवक्ता रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का उनका अध्ययन बहुत सारगर्भित है, और इन
अंबेडकर जी के योगदान से जुड़े कई विषयों पर उन्होंने बहुत सारगर्भित व्याख्यान भी दिए हैं। लगभग 2 टर्म यानी 12 साल वो महाराष्ट्र की विधान परिषद के सम्मानित सदस्य के रूप में स्नातक चुनाव क्षेत्र से चुने गए। मगर सबसे अगर अहम बात जो हम सबके लिए बड़ी प्रेरणादायी है वो ये है कि with him what we come across is a rare combination of a grassroots level worker with high level of intellectual contribution। सामान्यतः ये होता है कि जो ग्रासरूट पर काम करता है वो कहता है कि इंटेलेक्चुअल काम तो मेरा विषय नहीं है, और जो इंटेलेक्चुअल काम करता है उसको लगता है कि ग्रासरूट लेवल का काम तो अलग व्यक्तियों का रहता है। मैं मानता हूँ कि डॉक्टर मोडक जितने ग्रासरूट लेवल पर काम करते रहे, ज़मीन से जितने जुड़े रहे, उतने ही आसमान को छूने के उनके प्रयास अपनी एकेडमिक क्षमता के आधार पर बहुत सफल रहे, और इसलिए डॉक्टर मोडक हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी है। एक जापान की फिलॉसफी है जिसमें बोलते हैं कि इकिगाई, वेयर ऑल द 4 important aspects of your life come together, which is the mission of your life, the passion, the vocation and the profession। I think डॉक्टर मोडक इकिगाई को साध्य करने के एक जीवंत उदाहरण के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है। वैसे गुरुमूर्ति जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले थे। हम सब गुरुमूर्ति जी को जानते हैं, उच्च कोटि के विचारक, but unfortunately due to some reason, and many of us are aware, that Gurumurti ji is very closely associated with the Kanchi Kamakoti Math of Shankaracharya ji, and there is going to be a function there on today and tomorrow, and in a way he was helpless because he had to attend that function as well, which was decided later. But Gurumurti ji had sent us a beautiful communication, and he has asked me to read it out over here, but due to the shortage of time, I am just confining it to 2 important paragraphs of his communication. Gurumurti ji writes, I apologize to Dr. Ashok Modak and all persons present here for my inability to be with all of you. Pandit Deendayal ji was my inspiration in my extensive contemplation and study of Bharat's socio-economic and cultural architecture. I have been a long-standing admirer of Dr. Ashok Modak. I was keen to share my thoughts on his book Integral Humanism, a distinct paradigm of development, as I found it an original, multidimensional analysis of Deendayal ji's concept. I am missing the opportunity. Deendayal ji's exposition inspired and guided me to meaningful participation in the Swadeshi movement launched by Swargiya Dattopan Thengdi in response to the ambitious Western project of globalization. While concluding his communication, Gurumurti ji says, integral humanism is not a theory to propagate. It is normative discipline actually practiced by the society. One can, by observing the society, realize that the Bhartiya way of life is the practice of integral humanism. The only way to understand it better is that Deendayal ji theorized it and what is practiced by the society, and he did not propound a new theory and recommended it for social practice. It is the alien thoughts and alienated intellectuals, leaders and economists who made us oblivious of the ways of the life of Bharat. Deendayal ji reminds us through his contemplative short essay. To repeat, understanding integral humanism is to realize that what is the Bharatiya way of life. In short, integral humanism is the other name of Indian way of life. Ashok ji's book has captured the core dimensions of Deendayal ji's thoughts in different aspects of personal, social and national life. It is yet another profound contribution to the understanding of integral humanism. मैं मानता हूँ कि आज मोडक जी का 45वां पुस्तक, उनकी कृति हमारे सम्मुख आ रही है। आने वाले वर्षों में उनकी 50वीं कृति भी आएगी, और कैंसर जैसी बीमारी के साथ जूझते हुए भी वो सफलतापूर्वक लंबी आयु जिएंगे और लंबे साल के लिए वह इस पद्धति से अपना लेखन की यात्रा जारी करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं।
Thank you very much, sir, for your reflective thoughts on the book and also sharing the interesting details about our author. I also thank you for sharing the message of Shri Gurumurthy, sir. May I now warmly invite the esteemed author of the book, Integral Humanism, A Distinct Paradigm of Development, Professor Ashok Gajanan Modak. Sir is a distinguished academic, economist, and writer known for his contributions to political economy and international relations. He is former Chancellor of Guru Ghasidas Central University, Chhattisgarh. He has also worked as member of Legislative Assembly of Maharashtra. From 2015 to 2020, he was also offered National Research Professorship by the Government of India. I request Sir to kindly share his thoughts behind this remarkable work. इस कार्यक्रम के लिए पुस्तक विमोचक के नाते यहाँ उपस्थित श्रद्धेय आदरणीय धर्मेंद्र जी प्रधान, जो भारत के शिक्षा मंत्री है, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति जैसे ICSSR के चेयरमैन श्रीवास्तव साहब, विनय जी, सुनील अंबेकर जी, ICSSR के सदस्य सचिव प्रोफेसर धनंजय सिंह जी और सामने बैठे हुए आदरणीय गणमान्य व्यक्ति भाइयों और बहनों, आप मेहरबानी करके मुझे क्षमा करिए, कारण कैंसर की बीमारी के कारण मैं खड़ा नहीं सकता। जहाँ तक इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म ए डिस्टिंक्ट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट इस पुस्तक का सवाल है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जब 2015 में मुझे मोदी सरकार ने नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप ऑफर किया, दैट टाइम ओनली आई डिसाइडेड टू पे रिस्पेक्टफुल होमेज टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय. Why? Because it was in 2015 that Pandit Deendayal ji's lecture series completed 50 years, and secondly 2015 happened to be the beginning of the birth centenary of Pandit Deendayal Upadhyay. मुझे कहते समय खुशी होती है कि कुल मिलाकर 13 निबंधों का संकलन मैं इस पुस्तक के माध्यम से कर सका, जहाँ पंडित दीनदयाल जी और महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल जी और डॉक्टर अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल जी विवेकानंद के शिष्य, पंडित दीनदयाल जी लोकमान्य तिलक के विरासत चलाने वाले, आगे चलाने वाले श्रेष्ठ पुरुष, कॉन्टेम्पोररी चैलेंजेस एंड इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, ऐसे कई विषय मैंने इस पुस्तक में संकलित किए हैं. आज का जो समय है, मुझे पता है कि गणमान्य व्यक्ति मेरे अलावा बोलने वाले हैं. मैं और आप आदरणीय धर्मेंद्र जी का, सुनील जी का भाषण सुनने के लिए लालायित हूँ. इसीलिए संयोजकों ने ये सोचा है कि हर वक्ता 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेगा. I have decided to honor this particular timing. As far as integral humanism is concerned, peculiarity of the distinct paradigm of development lies in the fact that Pandit Deendayal Upadhyay has highlighted 3 peculiar qualities of integral humanism. Number 1, on 2 places, Pandit Deendayal Upadhyay invites our attention to the catastrophe awaiting both Marxism as well as capitalism. मैं गदगद हो गया जब दीनदयाल जी ने तीसरे व्याख्यान में श्रोताओं को बताया, वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर है, जिस राष्ट्र के प्राण राज्य के हाथों में रहते हैं उस राष्ट्र को भविष्य नहीं. मैं रूस में 5 साल हो आया हूँ, 2 साल वहाँ रहा हूँ.
मैंने देखा है किस तरह से सोवियत यूनियन प्रैक्टिकली फॉलोड नथिंग बट अनअडल्टरेटेड स्टेटिज्म। नतीजा क्या हुआ हमें मालूम है। सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड, मार्क्सिज्म द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द वर्ल्ड that has also collapsed. Peculiarity lies not in particularly prediction regarding the Soviet collapse, but also regarding the collapse of Lehman crisis. दीनदयाल जी अपने पहले या दूसरे व्याख्यान में श्रोताओं को बताते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये विकार रहते हैं मनुष्य जीवन में, लेकिन हिंदू संस्कृति ने उनको षड रिपु कहा है। ये व्यक्ति के 6 दुश्मन है। दुर्भाग्य से पूंजीवाद ने और मार्क्सवाद ने इनको अपने आधारशिला मानी है। क्या ये सही नहीं कि एडम स्मिथ कहते हैं, थिंक ऑफ योर सेल्फ, परसू योर ओन इंटरेस्ट, द सोशल इंटरेस्ट विल फॉलो। पंडित दीनदयाल जी ने बताया है कि देखिए, भले एडम स्मिथ कहने दो कि परसू सेल्फ इंटरेस्ट, भगवत गीता ने, भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि सर्वभूत हिते रतः, ऐसा आदमी ही दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक होगा। लेहमान क्राइसिस में क्या साबित हुआ? मेरा कहने का मतलब, peculiarity of the integral humanism lies in the fact that Deen Dayal ji predicted in 1965 regarding the collapse of Marxism and capitalism. You will all be shocked to know that it was in 1989 when Kuldeep Nayyar happened to be India's High Commissioner to Great Britain. उन्होंने गल्फ न्यूज़ में एक लेख पढ़ा जो मैंने दुबई में पढ़ा। कुलदीप नैयर कहते हैं कि पता नहीं क्यों, लेकिन एक दिन मार्गारेट थैचर इन्वाइटेड मी, एंड डू यू नो व्हाट डिड शी से? शी सेड टू मी, सोवियत यूनियन इज dwindling, collapsing, falling. Let some Indian take initiative and give a lesson how to keep the nation alive. कहने का मतलब, भारत 5000 साल जिंदा है, in spite of all types of invasions, aggressions. परकीय सत्ता होने के बावजूद भारतीय संस्कृति जिंदा रही। मुझे लगता है इसीलिए दीनदयाल जी ने सोचा कि एक दफ़ा लोगों के सामने हम ये सत्य रखें। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य की बात यह है कि उन दिनों के इंटेलेक्चुअल्स, उन दिनों के प्रोफेसर्स, उन दिनों के एडिटर्स यूरो और अमेरिका से बोरो करने के लिए लालायित बने थे। वो चाहते थे, वो कहते थे कि जो यूरोप में, जो अमेरिका में है, उसका ही अनुकरण भारत करेगा तो भारत का भला होगा। दीनदयाल जी was one of the few people, along with Dr. Ram Manohar Lohia, who proclaimed that we must take inspiration from India. डॉक्टर लोहिया जी ने तो एक जगह कहा है कि भारत का इंटेलेक्चुअल तेल की चक्की में आंखें बांधकर परिक्रमा करने वाला एक कर्मचारी बन गया है। वो सोचता ही नहीं भारत के बारे में, वो सोचता है यूरोप के बारे में, अमेरिका के बारे में। ऐसा व्यक्ति हमें मार्गदर्शन क्या करेगा? प्लीज़ ध्यान में रखें कि इट वॉज इन 1989 that Poland witnessed the emergence of solidarity, a wonderful historical movement led by Lech Walesa. पोलैंड में हो आया हूँ। पोलैंड में तोरुन नाम का एक गांव है जो कोपरनिकस की जन्मभूमि है, जहाँ आज भी कोपरनिकस की मूर्ति है। उस मूर्ति के नीचे एक वाक्य है, वो वाक्य ज़रा सुनने लायक है। इट वॉज ही
who made the sun stand still and the earth move around. लेच वैलेसा ने कहा आज के हमारी सभा के अध्यक्ष कोपरनिकस महोदय है. Just as Copernicus made the sun stand still and the earth move around, we have decided to make the society stand still and the party move around. बोल्शेविक क्रांति से लेकर केवल रूस में नहीं अपितु संपूर्ण पूर्व यूरोप में, चाइना में पार्टी केंद्रवर्ती बनी, सोसाइटी परिक्रमा करने लगी. पंडित दीनदयाल जी डिसाइडेड टू टर्न द क्लॉक राइट वे. Second peculiarity of integral humanism lies in the fact that there are 6 salient features. Number 1, integral humanism is affirmative, positive, constructive. मित्रों, हम सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए कि our nation has emerged, taken roots, neither in opposition nor in reaction, but in conviction that there lies divinity everywhere. And India's mission became to spread the divinity everywhere in the nooks and corners of the world. भारत की ये विशेषता है कि हम सकारात्मक चिंतन करते हैं. दूसरी विशेषता, हम आध्यात्मिक हैं, हम स्पिरिचुअल है. डू वी नॉट नो दैट स्वामी विवेकानंद delivered a wonderful speech at Lahore on 10th of November 1897 during his tour from Colombo to Almora. And Swamiji gave a wonderful definition of India. He says, India is the union of those hearts which beat to the same spiritual tune. कठोपनिषद में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिम दुसारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च. दुर्भाग्य से ब्रिटिशों को भगाने के पश्चात हम ब्रिटिशों को बुलाने लगे. We decided to build our thoughts on the basis of ideas borrowed from America and Europe. Dindayal ji challenged that particular line of thinking. Affirmativism, spiritualism, integralism. मित्रों, हम भूल नहीं सकते कि यूरोप में 17वीं सदी में रेन देकार्ते नाम का जो एक फिलोसोफर हो चुका है, उसने गैलीलियो और कोपरनिकस के रास्ते से रोड़ा जो अटका था वह दूर करने का एक वृथा प्रयास किया. He decided to entrust mind to Bible, to religion, and body to Vigyan, to science. Descartes is therefore known as the sponsor of mind-body dichotomy. Dindayal ji challenged that particular theory. Do we not know that ultimately whatever mind thinks, body merely implements? मित्रों, दीनदयाल जी ने 4 व्याख्यानों में विविध प्रमाण देकर ये सिद्ध किया कि we are not only affirmative, we are not only spiritual, we are not only integral, we are equally holistic in our thinking. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. मित्रों, ये जो पूर्ण स्तोत्र है हमें बताता है कि सृष्टि और निसर्ग हमारे लिए देवता स्वरूप है. यूरोप व्यक्ति को बड़ा मानने लगा. He has practically given license to every human being to dominate the nature. हिंदू संस्कृति ने कहा
कि हमने निसर्ग के सृष्टि के चरणों में शरण जाना चाहिए। मित्रों, उसी तरह से पांचवा विशेष इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का ये रहा है कि दीनदयाल जी सेज वी मस्ट गिव प्रायोरिटी टू साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ओवर इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन। मित्रों, हर्बर्ट स्पेंसर ने 1971 में एक पुस्तक लिखी है जिसमें ही पोज्ड ए चैलेंज टू मार्क्स। स्पेंसर ने मार्क्स को पूछा, हाउ आर यू गोइंग टू ऑल्टर द वर्ल्ड विद द सेम मेंटालिटी, सेम साइकोलॉजी ऑन द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग? You will all be astonished to know, same question was raised by Maxim Gorky while in conversation with Lenin during the days of Bolshevik revolution. Gorky ने सवाल पूछा है कि लेनिन, how do you think that we will be able to create a new world with the old mindset, with the old psychology? अंतिम विशेष ये है जो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने सप्रमाण सिद्ध किया है। वी डोंट बिलीव इन आइदर ऑरिज्म, वी बिलीव इन एज वेल एज इज्म। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हैविंग इलैबोरेटेड टू peculiarities of integral humanism, let me invite your attention to the last peculiarity. मित्रों, दीनदयाल जी ने अपने व्याख्यानों में ये बार बार सिद्ध किया है कि हमारा मिशन सामान्य नहीं है। आज जबकि 60 साल पूर्ण हो रहे हैं दीनदयाल जी के व्याख्यानों को, मित्रों मैं गदगद हो जाता हूँ जब ये वाक्य मैं पढ़ने वाला हूँ। कुल मिलाकर जो 4 व्याख्यान 22, 23, 24 और 25 अप्रैल 1965 को मुंबई में पंडित दीनदयाल जी ने दिए, उन व्याख्यानों का समापन कैसा किया है दीनदयाल जी ने? प्लीज लिसन टू हिम। हमें अपने राष्ट्र के विराट को जागृत करने का काम करना है। अपने प्राचीन के प्रति गौरव का भाव लेकर वर्तमान का यथार्थवादी आकलन कर और भविष्य की महत्वाकांक्षा लेकर हम इस कार्य में जुट जाए। हम भारत को न तो किसी पुराने समय की प्रतीक्षाया बनाना चाहते हैं और न रूस या अमेरिका के अनुकृति। विश्व के दर्शन और आज तक की अपनी संपूर्ण परंपरा के आधार पर हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो हमारे पूर्वजों के भारत से अधिक गौरवशाली होगा, जिसमें जन्मा मानव अपने व्यक्तित्व का विकास करता हुआ संपूर्ण मानवता ही नहीं अपितु सृष्टि के साथ एकात्मता का साक्षात्कार कर नर से नारायण बनने में समर्थ हो सकेगा। यह हमारी संस्कृति का शाश्वत दैवी और प्रवहमान रूप है। चौराहे पर खड़े विश्व मानव के लिए यही हमारा दिग्दर्शन है। भगवान हमें शक्ति दे, हम इस कार्य में सफल हो, यही प्रार्थना है। भारत माता की जय। मेरे भाषण का समापन करते समय ICSSR के चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी दोनों के चरणों में मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। दोनों ने ऐसी एक टीम खड़ी की जिस टीम ने यह कार्यक्रम 100% सफल बनाने के लिए सब तरह की मेहनत की। विशेषतः मैं 2 व्यक्तियों को जीवन में नहीं भूल सकूँगा। एक है अभिनव पालीवाल और दूसरे हैं अश्विनी कुमार। ICSSR के स्टाफ मेंबर्स को, सभी पदाधिकारियों को हार्दिक धन्यवाद देकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ICSSR एवं यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं की तरफ से आपके इन अमूल्य विचार एवं शैक्षणिक कृति के लिए आपको धन्यवाद सर। It is now my honor to invite Shri Sunil Ambekar ji, an eminent social thinker and presently Akhil Bhartiya Prachar Pramukh of Rashtiya Swayamsevak Sangh,
Shri Ambekar ji's scholarly work, The RSS Roadmaps for the 21st Century, offers valuable insights into the dynamics and working methodology of socio-cultural organization and civic engagements in India. I welcome you, sir. हमारे सबके आदरणीय डॉक्टर अशोक राव मोडक जी, भारत के शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र जी, ICSSR के श्रीमान दीपक जी, धनंजय जी और विनय सहस्त्रबुद्धि जी और उपस्थित सभी को प्रणाम, नमस्कार। ये क्योंकि बरसों तक हम लोग अशोक राव जी के मतलब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तब से अशोक राव जी के विद्वत्तापूर्ण और विश्लेषणात्मक जो विचार थे वो पढ़ते पढ़ते ही हमने अपने विचारों को या हमारी प्रस्तुति को आकार दिया और आज पुनः उनके जीवन के इस पड़ाव में इस महत्वपूर्ण पुस्तक के प्रकाशन के अवसर पर मुझे रहने का, उपस्थित होने का, कुछ कहने का अवसर मिला। इसे मैं अपना भाग्य समझता हूँ। तो हम सबके लिए तो अशोक जी गुरु जी हैं, सर है और बिल्कुल उसी रूप में हम उनको देखते हैं। और पहले से ही उनके जो विचार की जो गंभीरता थी या विश्लेषण था, उससे हम पहले से ही आकर्षित होते रहे, क्योंकि कोई भी बात अगर कहनी है तो उसका एक निश्चित आधार होगा, उसका एक निश्चित तर्क होगा और केवल पुरानी बात नहीं होगी, भविष्य में उसका क्या प्रभाव होगा, इसके संदर्भ में भी उनका विवेचन रहता था। और इस पुस्तक को भी आप देखेंगे तो उसमें भी इसी बात को अनुभव हम कर सकते हैं। और इसलिए चाहे सामाजिक समरसता का विषय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय विषय हो, और मतलब कभी कभी हम लोग मजाक से जब होता है ना कि कोई सर होते हैं, विद्यार्थी मजाक करते हैं, तो उन दिनों सर रशियन स्टडीज़ में पढ़ाते थे और इसलिए हम लोग कभी कभी सर के नाम में मोडकेस्कू कर देते थे कि भाई इनका नाम मोडक सर नहीं है, इनका नाम मोडस्कू है। तो इट वाज अ रशियन प्रोनाउंसिएशन हम लोग कर देते थे। तो और सर को ये पता था, अशोक जी को, ही ऑल्सो यूज्ड टू एंजॉय ऑल दिस। तो इतने वर्षों के बाद मुझे मतलब लगातार हम लोग संपर्क में रहे ही और सर से हमने ये सारे विषयों पर अशोक जी से लगातार समझने और सुनने का अवसर मिला। पिछले दिनों 2018 में हम लोग रशियन जो प्रेसिडेंट चुनाव में, तो हम लोगों को अवसर मिला, हम दोनों वहाँ एक डेलीगेशन के रूप में साथ में थे 7 दिन। और अशोक जी के साथ होने के कारण रशियन भाषा भी उनको आती है और रशिया भी समझते हैं, तो पूरा यूरोप भी घूमे हैं। तो मेरा यूरोप, रशिया, वहाँ की पॉलिटिक्स, उस प्री कम्युनिस्टरिज्म और उसके बाद की सारी परिस्थिति, कई सारे विश्लेषण, तो स्वयं अशोक जी एक ऐसे पूरे ज्ञान का, विश्लेषण का एक भंडार है और हम सब आपसे लाभान्वित हैं। और मैं भगवान से यही कहूँगा कि हम लगातार ऐसे लाभान्वित होते रहे। जहाँ तक दीनदयाल जी के चिंतन का, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का विषय है, एकात्म मानव दर्शन का, दीनदयाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उनकी विशेषता को समझना बहुत आवश्यक है। आज के मतलब जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, उस समय उनकी इस बात को समझना मुझे लगता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीनदयाल जी स्वाधीन भारत की लोकतंत्र को एक दिशा देने का एक महत्वपूर्ण कार्य करने में लगे हुए थे। दुनिया में और भी देश हैं जहां लोकतंत्र है और जहां अलग अलग पार्टियां हैं, और गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसकी लोकतंत्र, उसके वर्णन उस समय ही करके रखे थे स्वाधीनता के पहले। और देश स्वाधीन होने के बाद जब हमारे देश में राजनीति प्रारंभ हुई, तो उस समय
दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन के बारे में अध्ययन करते हुए एकात्म मानव दर्शन को अपने राजनीतिक दल का मुख्य, जिसको मैनिफेस्टो, केवल चुनाव का मैनिफेस्टो नहीं, इट वाज अ पार्टीज मैनिफेस्टो, ये उन्होंने बनाने की भूमिका रखी। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार ऐसे होता है राजनीति में कि पार्टी तात्कालिक मुद्दों पर अपनी वोट बैंक बनाने के लिए कभी कभी पॉपुलर मुद्दे लेती है, कभी कभी कोई कास्ट कम्युनिटी कोई ना कोई उसको अपना आधार बनाकर अपना आधार बढ़ाती है, कभी कभी तात्कालिक 5 वर्ष के चुनाव को देखकर लोक लुभावन नारे लगाकर या तात्कालिक परिस्थिति का दुरुपयोग करते हुए अपने राजनीतिक विस्तार का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी इसमें जहां लोगों का ज्ञान बढ़ाना चाहिए, यानी ऐसी अपेक्षा करना कि लोग ज़्यादा जाने, सब कुछ जाने और ज़्यादा से ज़्यादा समझदार हो और वो सब कुछ जानकर पूरे देश के बारे में एक व्यापक विचार मन में रखकर वो राजनीति का अंग बने, और ऐसे वोटर की इच्छा करना किसी राजनीतिक दल ने तो आज़ादी के स्वाधीनता के पश्चात दीनदयाल जी ने ऐसी इच्छा रखकर एकात्म मानव दर्शन, और जिसमें उन्होंने महत्व का विषय रखा कि लोक मत परिष्कार होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को इस देश के राष्ट्र के बारे में, धर्म के बारे में क्या सही है क्या गलत है, कौन सी पॉलिसी सही है कौन सी नीति सही नहीं है, इसकी उचित समझ विकसित होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने इस बात को रखा कि टुकड़ों टुकड़ों में सोचने से, कभी कभी होता है चुनावबाजी में टुकड़ों टुकड़ों में सोचना होता है, पार्ट बाय पार्ट, कि इस समय के लिए सोच लो, लेकिन उन्होंने एक बात राजनीतिक दल के रूप में रखी है, वो उस समय राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, प्रमुख कार्यकर्ता है, और उन्होंने ये बात रखी कि नहीं, ऐसी राजनीति नहीं कि जिसमें लोगों को अंधेरे में रखा जाए और हम करें। तो उन्होंने ये बात महत्वपूर्ण आधार रखी। तो उन्होंने एक ऐसे राजनीति का सपना देखा और ऐसे एक राजनीति की नींव उन्होंने डाली कि जिसमें लोगों को जागरूक करने का प्रयास हो, और इसलिए उनका जो पूरा एकात्म मानव दर्शन है वो उस समय तो दुनिया में कैपिटलिज्म कम्युनिज्म का जब पूरा एक हवा चल रहा था, मतलब बड़ा प्रभाव था, मतलब जनरली लोग या तो कैपिटलिस्ट होते थे या कम्युनिस्ट होते थे, एंड इट वाज फैशनेबल, जस्ट क्रेजी। उस समय उन्होंने ये मूल बात रखी कि नहीं, इससे हम नहीं चल सकते और भारत को एक नया रास्ता दिखाना होगा। और उन्होंने जैसे कहा कि एक जो भारत की धारा थी, जो मूल विचार था एकत्व का, एकात्मता का, आजकल बड़ा शब्द चल रहा है हर जगह, इंटीग्रेटेड चल रहा है आजकल। अपनी नई शिक्षा नीति और दुनिया भर में भी ये आया है कि भाई टीचिंग में भी सारे सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मतलब मेडिसिन में भी इंटीग्रेटेड मेडिसिन होना चाहिए, हर जगह इंटीग्रेटेड शब्द चल रहा है। बट जब ये शब्द नहीं चल रहा था, जब पूरा हर जगह कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा था, सुपर स्पेशलाइजेशन की धारा चल रही थी कि जैसे हम अलग अलग कमरों में ही रहते हैं, उस समय दीनदयाल जी ने यह विषय रखा कि ऐसे ऐसे मानव का जीवन या किसी राष्ट्र का जीवन ऐसे नहीं हो सकता। और उन्होंने इस बात को रखा कि कैसे हम एक दूसरे से जुड़े हैं और जुड़कर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से अशोक मोडक जी ने अपनी इस पुस्तक में लिखा है कि उनके जाने के बाद धीरे धीरे उनका जो ये विचार है ये दुनिया भर में कैसा स्वीकृत हो रहा है। आज योग की जो स्वीकृति है वो भी इस बात की स्वीकृति है कि आपका जीवन आइसोलेशन नहीं हो सकता, एक संपूर्ण इंटीग्रेटेड होने से ही ये सोच होगा। ये उसकी धीरे धीरे स्वीकृति का एक लक्षण है। और इसीलिए ये बात धीरे धीरे अब पर्यावरण के बारे में फिर वही विचार आ रहा है कि भाई ऐसे विकास और विकास ऐसे नहीं हो सकता, या कल्चर संस्कृति के बारे में आप अलग होगा, परिवार अलग होंगे और विकास अलग दिशा में जाएगा, जहाँ की लिखा गया कि कल्चर डजेंट मैटर, कोई संबंध ही नहीं है इसका।
तो ये जो डिसइंटीग्रेटेड या अलग अलग जो विचार रखे गए, अब धीरे धीरे दुनिया भर के लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि जीवन ऐसे नहीं होता है, या जीवन के विचार ऐसे नहीं हो सकते। और इसलिए बाइनरीज में जो सोचने की बात चल रही थी, अब उसमें धीरे धीरे प्रभाव बदल रहा है। और इसलिए आज मुझे लगता है कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लोक जागरण, लोकमत परिष्कार होना आवश्यक है, क्योंकि आज हमारे सामने इस समय में भी बहुत सारे विषय हैं। अब हम एक आर्थिक दृष्टि से इस स्तर पर आए हैं कि हम आगे बढ़ना है, हमें विकास की दिशा में जाना है। अगर विकास का ये संतुलन के बारे में अगर लोगों में चर्चा नहीं होगी कि हमें कौन सा विकास चाहिए, हमें पर्यावरण के अनुकूल पूरक विकास चाहिए, हमें अपने परिवार, अपना मनुष्य जीवन, हमारी जो सामाजिक बातें हैं, सोशल स्पेसेस है, उनकी रक्षा के साथ हमें अपने विकास के रास्ते चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर लोगों का मत इसके बारे में नहीं होगा तो फिर लोग अगर इस बारे में नहीं सोचेंगे और इस पर जागरण नहीं होगा तो फिर राजनीति में फ्री बीज जैसी बातें चलती रहेगी। क्योंकि लोकमत अगर जागरूक नहीं होगा तो राजनीति में उसी की प्रतिस्पर्धा होगी, और उस प्रतिस्पर्धा को दूर करना है तो वो करना आवश्यक है। वैसे देखिए, लोकमत परिष्कार तो होता रहता है, हर समय चुनाव में बहुत सारी बातें रखी जाती है, टीवी पर मीडिया के द्वारा बहुत सारी बातें आती है, और भी बहुत सारे लोग हैं कि जो अपने अपने समुदायों के अनुसार अपने अपने जागृति करते रहते हैं। लेकिन ये अलग अलग जागृति से नहीं होगा, और जागृति किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से नहीं हो सकती। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि इसमें जागृति में समाज के प्रबुद्ध वर्ग का बहुत बड़ा कार्य है। वो अपने लेक्चर में कहते हैं कि वीतरागी सन्यासी जो लोग हैं वो जब लोकमत परिष्कार करेंगे तब वास्तव में परिष्कार होगा। अब आज के समय में केवल हम वीतरागी सन्यासी ये शब्द को पकड़ के बैठ नहीं सकते हैं। तो जो ऐसे वर्ग समाज में निर्माण होना आवश्यक था कि जो समाज के बारे में एक निरपेक्ष रूप से सोच सके, सच्चे प्रेम से समाज के बारे में सोच सके, बियॉन्ड जा सके अपने निजी स्वार्थों के। डॉक्टर हेडगेवार ऐसे एक व्यक्ति थे कि जिन्होंने सोचा कि ऐसी एक श्रृंखला मुझे देश में उत्पन्न करनी है कि जो निरपेक्ष रूप से देश में ऐसा जागरण कर सकेंगे, ऐसा लोकमत परिष्कार कर सकेंगे। और मुझे लगता है कि ये कार्य आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी देखिए, अब धर्मेंद्र जी यहाँ उपस्थित है, अब सरकार ने नीति में निर्णय लिया है कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना है। और अगर लोगों के मन में ये विचार अगर ठीक से नहीं आएगा कि भारतीय भाषा में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, तो सरकार की नीति रहेगी कि भारतीय भाषा को प्रोत्साहन देना, और लोग कहेंगे नहीं अभी भाई अंग्रेजी के पीछे चलो। तो नीति होने पर भी, अगर सरकार चाहने पर भी वो नीति का क्रियान्वयन कैसे होगा? ये बात अभी देखिए, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर या ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर कुछ आता है। मुझे याद है, मैं और भी एक जगह ये बात कहा था कि अभी टिकटॉक के समय बात आई थी, तो मुझे लगता है कि जो भी प्रशासन, सरकार ये दुविधा में रहती है कि क्या ये युवाओं में पॉपुलर होगा कि अनपॉपुलर होगा, समाज क्या सोचेगा। और अगर समाज तैयार है, जब समाज को लगा कि नहीं टिकटॉक ये चाइना से जुड़ा है और हमारी देश की एकात्मता के खिलाफ है, और तब ये जब लोकमत बना तो सरकार ने अपनी एक्शन कर दी, टिकटॉक चला गया। अब क्योंकि जब तक लोगों की ये इच्छा नहीं बनती है, आज भी यही विषय है कि भाई बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें बहुत सारे लोग विपरीत प्रकार से भी बाइनरीज में लोगों का परिष्कार करते जा रहे हैं, और जो लोग दिशा भूल करने का भी, मतलब गलत दिशा में ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो कब तो ये बात, जब समाज ये जागरूक रूप में अगर इन बातों को सोचता है, समझता है, और वो जागरण सतत रूप से चलता है, और वो निरपेक्ष रूप से समाज के ऐसे लोग उसमें पहल करते हैं, तो वो वास्तव में होता है। और दीनदयाल जी एक शब्द उपयोग करते हैं कि राष्ट्र के जागरूक प्रहरी, इनकी ज़रूरत है। और वो जागरूक प्रहरी, ये इसके लिए हम किसी पर निर्भर नहीं हो सकते। हर एक नागरिक को एक जागरूक राष्ट्र में राष्ट्र का जागरूक प्रहरी का कार्य करना है। तो दीनदयाल जी के उद्बोधन के जो 60 वर्ष हुए, और उस समय उनके इन शब्दों को
मुझे लगता है कि बहुत अच्छे शब्दों में अशोक जी ने अपने पुस्तक में वर्णित किया है और आज भी उनके वो विचार प्रासंगिक है। और हम इस मोड़ पर है एक राष्ट्र के रूप में कि जिस समय ऐसे बहुत सारे निर्णय हमें करने हैं और बहुत सारी बातें एक दिशादर्शक के रूप में पूरी दुनिया के सामने रखनी है। तो जितने इन बातों पर एक सकारात्मक रूप से लोग जागरण होगा, दीनदयाल जी के एकात्म विचारों को हम जितना समझेंगे, मुझे लगता है कि हमारे आने वाले समय के नई पीढ़ी के लिए जो हम निर्णय करेंगे समाज के नाते, राष्ट्र के नाते, वो सही दिशा में होंगे, वो हमारे लिए भी सार्थक होंगे और पूरी मानवता और राष्ट्र दुनिया के लिए भी सार्थक होंगे। तो मुझे लगता है कि यही संदेश देने का एक सार्थक कार्य इस किताब से अशोक जी ने किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ और पुनः एक बार सबका अभिवादन, नमस्कार। एकात्म मानववाद पर आपके इन ज्ञानवर्धक वचनों के लिए धन्यवाद। May I now take the privilege to invite Honorable Union Minister of Education Shri Dharmendra Pradhan ji to address us. He is a prominent national leader and Union Minister of Education. During his tenure, Shri Dharmendra Pradhan ji has played a significant role in shaping India's education and skilling landscape, spearheading major reforms like National Education Policy 2020. He is a dynamic and visionary leader. You may take the stage. नमस्कार। आज की इस पुस्तक विमोचन के मंच पे उपस्थित हम सभी के लंबे समय से मार्गदर्शन करने वाले इस पुस्तक के रचयिता प्रोफेसर अशोक गजानन मोडक जी, मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख आदरणीय सुनील आंबेकर जी, ICSSR के अध्यक्ष प्रोफेसर दीपक श्रीवास्तव जी, रामभाव महालगी प्रबोधिनी के वाइस चेयरमैन पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी तथा ICSSR के सचिव आदरणीय धनंजय सिंह जी तथा यहाँ उपस्थित हम सभी के प्रेरणा के उत्स आदरणीय राजकुमार भाटिया जी, महेश शर्मा जी, आदरणीय रघुनंदन जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर शशिकला वांजेरी जी, प्रोफेसर मंजूर आसिफ जी, वाइस चांसलर जामिया मिलिया, बहुत अनुभवी कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण भाला जी तथा अन्य सभी महानुभाव, हम सब आज एकत्रित हुए हैं। एक सुखद संजोग, हम एक समय में एकत्रित हुए हैं जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद, एकात्म मानव दर्शन की व्याख्यान आज से 60 साल पहले इन्हीं दिनों में मुंबई में हुई थी। उसकी 60 साल पूर्ति के अवसर पे मैं सबसे पहले आदरणीय श्री मोडक जी को आभार प्रकट करूंगा भारत सरकार की ओर से, ICSSR की ओर से। उन्होंने एक वैचारिक अर्घ्य, एक पुष्पांजलि उन्होंने आज हम सब के सामने, भारत की जनमानस के सामने उपस्थापित किया। मैं धन्यवाद निश्चित रूप में दूंगा ICSSR की टीम को। उन्होंने एक दर्शन को भारत की राजनीति में, ये भारत की सामाजिक जीवन में एक अंतर्द्वंद कभी कभी सुनने को मिलता है। सत्ताधारी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं होता है, विचारधाराएं कोई एक संगठन को कुछ समय तक पनपने के लिए, आगे आने के लिए मदद करता है। बाद में जब प्रजातंत्र में हम विश्वास करके वोट लड़ते हैं, जब हम बहुमत हासिल करते हैं, लेकिन कभी कभी आलोचना ये भी होता है बहुमत कहाँ है, 51% तो है ही नहीं। आप तो 35, 38, 42, 49% वोट में भी आप बहुमत हासिल किए हो।
उस समय में जब आप सरकार में आते हो, सामाजिक दायित्व में आते हो, तब आप इस विचार से आते हो, क्या उस विचारधारा को लागू करना उचित है क्या? कुछ लोगों ने इस भ्रम में रहे आजादी के आंदोलन की अधिकार सभी के साथ था। भारत की उन समय के समाज ने सभी ने लड़ाई लड़ा। उसकी मंच शायद कांग्रेस ही था, नाम कांग्रेस था, लेकिन उसमें विचारधारा, तत्व, मत भिन्नता, मत ऐक्यता अनेक उसके अंदर दिखने को मिलता है। लेकिन जब कांग्रेस लंबे समय सत्ता में रही, ये मौलिक दुविधा प्रश्न उठी, क्या सत्ताधारी दल की विचारधारा होना चाहिए क्या, हो सकता है क्या? होना चाहिए अलग बात है, हो सकता है क्या? ये डायलेमा सामने आई। वैसे ही हमारे देश में जब जब साम्यवादियों की सरकार आई, उन्होंने कोशिश किया, उनकी जो विचारधारा, उनकी जो सामाजिक मान्यताएं रही, उनके आधार पे उन्होंने सत्ता को, राजकरण को डालने का और ढालने का कोशिश किया। उसकी भी परिणाम देश में अभी इसी समय में हमको देखने को मिलता है। जब कहीं किसी इलाका में वो अखंड क्षमता के, अखंड शक्ति के प्रतीक थे, आज उनको गिने चुने नंबर में ध्यान में आती है। इसी परिप्रेक्ष्य में कहता हूं, आदरणीय स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पे जिन विचारों को लेके वो काम किए और जिन संगठनों में, जिस संगठन में वो काम किए, क्या वो संगठन या उनकी विचार, क्या वो पाश्चात्य की अवधारणा में हम उसको एक आइडियोलॉजी कहेंगे या एक दर्शन कहेंगे? मेरे दृष्टि से, मैं भारत की सामाजिक जीवन की एक विद्यार्थी के नाते मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम लोगों के सामने, जब हम दुविधा में थे, देश आजाद हुआ था, देश में एक प्रश्न चिन्ह था, क्या मैकोलिज्म सच में गया है, क्या वो व्यवस्था अपना ही हो गया है, स्वराज्य आया है, सुराज सच में आ सकता है क्या? इस प्रकार की दुविधा के समय में, मैं इसलिए कह रहा हूं दुविधा में, क्योंकि उन दिनों में जब अगर इतिहास को पढ़ते हैं, कई सारे नीतियां पाश्चात्य को क्या लगेगा। उस समय में कम्युनिस्ट मूवमेंट अपने चरम पे था। ऐसे ही सफल प्रयोग अमेरिका के नाम पे, कैपिटलिज्म के नाम पे, और यूरोप में कई देशों में पनपा था मॉडल, औद्योगिक क्रांति, उसके ऊपर लोगों की विकास, ये सब उदाहरण के रूप में दिया जाता था। उस समय में भारतीयता के आधार पे पंडित जी ने दर्शाया, एक वक्तव्य दिया, एक तत्व रखा, जो तत्व सत्य सनातन है। इसलिए जब प्रोफेसर अशोक मोडक जी ने उनको एक कंपैरेटिव स्टडी किया, तत्व के नाते उनमें गांधी जी मिले, उनमें लोहिया जी मिले, उनमें बाबा साहेब आम्बेडकर जी मिले, उसमें विवेकानंद जी मिले। इसलिए मैं इसको कहता हूं, ये सत्य सनातन था, ये निरंतर था। इसी को रेनेसां कहा जाता है, इसको पुनः निर्माण कहा जाता है, उसको पुनः जागृति कहा जाता है, जिसकी एक कॉन्टेम्पररी शब्दावली में समाज जीवन जैसे था उस समय को ध्यान में रखते हुए एक ऑल्टरनेटिव मॉडल के लिए स्वर्गीय उपाध्याय जी ने एक विजन हम सबको दिया, मैं मानता हूं एक दर्शन दिया। विकास केवल जीडीपी या टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं हो सकता है, विचार, व्यक्ति और समाज की सकारात्मक मनोवृत्ति और समावेशी समाज, ये दोनों की एकात्मता से ही एक समाज निर्माण हो पाएगा। ऐसे विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कब देखा, जब उस तत्व को लोगों ने परिहास किया। हम लोगों की दुर्भाग्य रहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस विचार को एक व्यवहारिकता तक लेके आने, केवल पंडित दीनदयाल जी केवल विचारक नहीं थे, केवल एक तत्व को इंटरप्रेट नहीं किए थे। 67 की चुनाव भारत की राजनीति में एक नई लकीर भी खींचा था। कुशल संगठक थे,
इसीलिए उसको कहा जाता है व्यवहारिक समन्वय उन्हें खड़ा किया। अलग अलग विश्वास पद्धति हो सकता है, विचारधाराएं थोड़ा अलग अलग हो सकती है, लेकिन तत्व तो हम सब एक है। जिनकी भारतीयता पे विश्वास था, इन समूहों को इकट्ठा करके एक अच्छे संगठक के नाते 67 तक उन्होंने राजनीति में लकीर खींचना शुरू किया, जिसको उन्होंने लोगों ने देखा। हमको एक दुखद समाचार के साथ उनको हम मुगल सराय के स्टेशन में पाए। अगर वो जिंदा रहते तो शायद उसकी व्यवहारिकता और इंटरप्रेट करते, उसकी अप्लाइड पार्ट को इंटरप्रेट करते, शायद इतना देरी ना होता। लेकिन मैं बड़े फिर कहता हूँ, बड़े गौरव के साथ कहूँगा, उसके बाद उस तत्व को, उस दर्शन को लोगों ने जब जब मौका मिला उसको प्रैक्टिस किया है, उसको अमल लाने में प्रयास किया है। आज भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसी दर्शन को आगे बढ़ाते हुए, मैं उस दर्शन की विश्वासी के नाते, मेरे को एक समय में 2014 में पेट्रोलियम विभाग की काम मिला। मैं एक पब्लिक पॉलिसी की स्टूडेंट, एक केस स्टडी के नाते आपके सामने मेरे अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं भी स्कूल से पढ़ के आया हूँ। बचपन से मैं प्रोफेसर अशोक मोडक जी, महेश शर्मा जी, राजकुमार भाटिया जी, सुनील आंबेकर जी, रघुनंदन जी को बैठकों में विचारों को सुनते हुए हम भी बढ़े हैं। जब हमें दायित्व मिला एक इकोनॉमिक मिनिस्ट्री की, जिस मिनिस्ट्री के प्रायतः काम है, मूल काम है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करना, एक एक्सक्लूसिव कमोडिटी को लोगों तक पहुंचाना, एक एक्सक्लूसिव प्राइस भी था, एक प्रकार के एक व्यावसायिक मिनिस्ट्री था। लेकिन उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फिलोसफी था, हमारी सरकार, हमारी सेवा सबके लिए होगा, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास जीतना, सबके लिए प्रयास करना। कोई आज हमारी सरकार की फिलोसफी सैचुरेशन है। ये आइडिया ऑफ सैचुरेशन आया कहां से? जब समाज की सभी घटकों की एकात्मता नहीं होगा तब ये सैचुरेशन की तत्व नहीं आएगा। जब हम दायित्व में आए तब भारत में अमूमन 30 करोड़ परिवारों में से 14 करोड़ परिवारों में क्लीन कुकिंग फ्यूल था। नहीं था तो गरीबों के घर में नहीं था। सरकार ने नीति अपनाई। हम विचारधारा में बंधे हुए लोग नहीं है, और उसकी सबसे ज्यादा लाभार्थी माइनॉरिटी वर्ग के लोग हुए, जो हमें अंगुली उठाते कहते हैं कि विचारधारा हावी हो जाता है। विचारधारा हावी होता तो सबके घर में एलपीजी चूल्हा नहीं पहुंचता। अगर विचारधारा हावी होता, अगर दीनदयाल जी की वंचित वर्ग के प्रति विचार स्पष्टता हमको नहीं मिलता, सेवा में रहे हुए लोगों को नहीं मिलता, तब 4 करोड़ पक्के घर नहीं बनते और 30 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन नहीं होता, और मुफ्त में 10.5 करोड़ एलपीजी नहीं पहुंचता, सबके घर में बिजली नहीं पहुंचता। भारत की राजकारण में अनेक सरकारें बनी, उस सरकारों की समीक्षा करने के लिए अनेक रिपोर्ट भी बनाई गई है। सारे रिपोर्टों को, कुछ रिपोर्टों को मैंने भी अनुध्यान करने का, अध्ययन करने की प्रयास किया। उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, सबको नहीं मिला। आज भी मैं दावा नहीं कर सकता हूं हम सबको पहुंचा दिए हैं, लेकिन हमारी तत्व रहा है, हमारी लक्ष्य रहा है, हमारी दायित्व हम मानते हैं। सरकार कोई विचार की नहीं है, सरकार समाज की है, समाज के लिए समर्पित है। समाज की सभी घटकों की सामूहिक विकास, जिसको एकात्म मानववाद के नाम पे मैं आभार प्रकट करूंगा डॉक्टर मोडक जी को। ऐसे तो 2015-16 में शताब्दी के समय में आदरणीय विनय जी, आदरणीय महेश जी, ऐसे महानुभावों की प्रयासों से और अनेक संगठनों की प्रयासों से एक बार पुनः
स्मरण करने के अवसर मिला। आफ्टर ऑल ये तत्व था ही क्या। लेकिन मैं उसके उपरांत मैं अत्यंत आज उत्साहित हूँ। आज के समय का कोई भी तत्व कालबाह्य होने का एक खतरा रहता है, लेकिन जो अजय तत्व रहता है, अमर तत्व रहता है, जो भारतीयता जिसको कहा जाता है, वो इसीलिए अजय रहता है कि वो समय के हिसाब से खुद को बदलता है, खुद को ढाल लेता है। डॉक्टर अशोक मोडक जी ने एकात्म मानव दर्शन को व्याख्यान करते हुए ऐसे विषयों को लाया है जिसको 2015-16 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में कैंपेनिंग की रूप लिया गया। उसको दशकों पहले भारतीयता की परिप्रेक्ष्य को बताते हुए दीनदयाल जी ने व्याख्यान किया है। ऐसे कालजयी तत्वों का आज हम विरासत की सब हिस्सेदार हैं। आज इस सारस्वत महोत्सव में जो नया रूप लिया है किताब, उसको मैं शुभेच्छा देता हूं फिर एक बार ICSSR को, फिर भारत सरकार की ओर से आदरणीय अशोक मोडक जी को और आप सभी को आभार प्रकट करता हूं कि आप इस विचार तत्व को आज एक कॉन्टेम्प्ररी कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेम्प्ररी लैंग्वेज में भारत की बौद्धिक जगत के लिए समर्पित करने का आप सभी ने मदद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें सम्मानित करने के लिए आपका धन्यवाद। आज हम यहाँ से सर से सीख के जाते हैं, विकास केवल तकनीकी नहीं हो सकता। So development is not just what we build, but also what we become. So while concluding the event, I would now request Shri Abhinav Paliwal, Assistant Director and in charge, Publication and Research Survey Division, ICSSR, for the formal vote of thanks. Respected Shri Dharmendra Pradhan Sir, Honorable Union Minister of Education, esteemed dignitaries on the dais, distinguished guests, members of the academic fraternity, media, and dear friends. It is my honor and privilege to propose the vote of thanks on behalf of the Indian Council of Social Science Research at this momentous occasion. The launch of the book Integral Humanism, a distinct paradigm of development, authored by Professor Ashok Gajanan Modak. First and foremost, on behalf of the ICSSR, I extend heartfelt gratitude to Shri Dharmendra Pradhan Sir for gracing this event with his esteemed presence and inspiring us with his thoughtful address. Sir, ICSSR is deeply encouraged by your continuous support for academic and intellectual endeavors in the field of social sciences. I extend my sincere thanks to Shri Sunil Ambekar Sir and Dr. Vinay Sahasbuddhi Sir for their enriching perspectives on Pandit Dindayal Upadhyay Ji's intellectual journey and contributions. I also express my heartfelt gratitude to Professor Deepak Srivastava Sir, Chairman ICSSR, and Professor Dhananjay Singh Sir, Member Secretary ICSSR, for their guidance and leadership in bringing this publication to fruition. I would like to express our deep appreciation to Professor Ashok Gajanan Modak Sir, whose insightful scholarship has contributed significantly to the discourse on integral humanism, a philosophy that endurely relevant in today's development paradigm. Last but not the least, I thank all of our esteemed guests, scholars, media representatives, and colleagues who have joined us today. Your presence makes this event truly meaningful. I also express my sincere thanks to the ICSSR officials and the PRS team for the wonderful work they have done in bringing this work to the social science research community at large. Let us continue to celebrate and support such scholarly contributions that shape our society's intellectual landscape. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. Now may I request you all to stand for the national anthem. Thank you, everyone. I request you all to kindly join us for high tea in the lawn. Thank you so much.